Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next lecture regarding the diodes. और आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड के ऊपर बात करेंगे. तो आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम किस तरह से डायोड को ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ उसकी जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे. So this topic is related to our course Basic Electronics, PHY 3 to 3, BS Software Engineering, Morning, second semester, Spring 2021. So in the last lecture, we have talked about fundamentals of, you can say, the semiconductor, and we have discussed that why we prefer semiconductor, tunability of semiconductors, semiconductor devices. Then we especially discuss about the basic structure of semiconductor devices, which is based upon the PN junctions. तो हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टू टर्मिनल डिवाइसेस को देखा कि सारी की सारी जो है वो पीएन जंक्शन पे बेस करती हैं. और फिर बाइसिंग और पीएन जंक्शन के ऊपर हमने डिस्कशन की और फिर हमने डिस्कस किया कि बाइसिंग जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द पीएन जंक्शन. और दो तरह की बाइसिंग हो सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग. इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम ऑपरेशन ऑफ डायोड के ऊपर बात करेंगे कि डायोड जो है जब फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा या फिर रिवर्स बाइस मोड में होगा तो ये ऑपरेट कैसे करेगा. आज के लेक्चर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड देन वी डिस्कस दैट कि जब हम फॉरवर्ड वाइज या फिर रिवर्स वाइज करते हैं तो फिर उसकी वजह से वोल्टेज और करंट की जो रिस्पांस है वो किस तरह से डिस्टर्ब या फिर इफेक्ट होता है डायोड के ऑपरेशंस के अंदर, वो देखेंगे. एंड वी विल सी दैट कि इसका जो रिस्पांस है क्या वो ओहम लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि V is directly proportional to I is basically the fundamental base of ओहम लॉ. तो क्या ये ओहमिक बिहेवियर शो करेगा, लीनियर फॉर्म होगी या नॉन लीनियर फॉर्म होगी, या किसी स्ट्रेट लाइन की बजाय किसी कर्व को फॉलो करेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे. तो आइए सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ डायोड. तो अगर ऑपरेशन के हवाले से देखा जाए तो ऑब्वियसली देयर आर टू ऑपरेटिंग रीजन्स एंड द थ्री पॉसिबल बायसिंग कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड जंक्शन डायोड. एंड दीज आर zero bias, no external voltage is applied to the PN junction diode. Reverse bias, the voltage applied is connected with P पॉजिटिव. जो P साइड को हमने अगर आप नेगेटिव से जोड़ दें और N साइड को पॉजिटिव से जोड़ दें तो फिर जो होगा across the diode which has the effect of increasing the PN junction diode width. तो ये आपके पास जो है रिवर्स बायसिंग कहलाएगा. फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? the voltage is connected positive to terminal to the p type material and the negative side is connected to the n type material across the diode which has the effect of decreasing the pn junction width. ये हमने अभी तक के लेक्चर्स के अंदर भी ये बातें सीखी हैं. what happen if we have zero bias junction diode? अगर आपके पास जो बायसिंग है वो जीरो है, when the diode is connected to zero bias condition, no external potential energy is applied to the PN junction. However, if the diode terminal are shorted together, a few holes जो है majority carriers in the P type with enough energy to overcome the potential barrier will move from across the junction against this barrier potential. This is known as the forward current and it is referred as IF. Likewise, holes generated in the N-type region minority find the suitable favorable and move across the junction in the opposite direction. This is called the reverse current and it is referred as IR. And this transfer of electron in the holes back and forth across the PN junction is known as diffusion, which you can say as shown in the figure here. So you can see here, this is the PN junction and there is no biasing, or you can say this is the schematic diagram or symbolical representation of resistor and the diode. और उसके बाद आपके पास किसी किस्म की कोई बैटरी नहीं है, बट इसके बावजूद यू हैव to and fro motion of the current. So this is the reverse current here and this is the forward current here. तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So the for the case of forward current it is from positive P side to N side, and for the case of reverse current it is from N side to P side region here. However, the built-in voltages vary from zero point 0.3 to zero point 0.7 voltages.
और इस तरह से ये वेरी करेंगे। However, if we look at the situation, then the potential barrier that now exists and discourage the diffusion of any mode majority across the junction. However, the potential barrier has a minority few free electron in the p region and the few electron in the n region to drift across the junction. So then an equilibrium or balance will be established when the majority carriers are equal and both moving in opposite direction, so that the net result is zero. You can say the current flowing in the circuit. When this occurs, the junction is said to be in the dynamic equilibrium. अगर आपके पास दोनों ही minority carriers जो है वो एक दूसरे को balance out कर देंगे तो this condition will be called as a dynamic equilibrium. So the minority carriers are constantly generated due to the thermal energy. So this state of equilibrium can be broken by raising the temperature of the p-n junction, causing an increase in the generation of minority carriers, thereby resulting in an increase in the leakage current. But an electric current cannot flow since no current can be flow in the p-n junction when there is non-zero, you can say, biasing condition. सो आपने साथ साथ नोट करते जाना है कि हम जैसे जैसे ऑपरेशन ऑफ डायोड के अंदर कंडीशन का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह से हम उसके करंट और वोल्टेज के रिस्पॉन्स को भी स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक की बात से हमने ये साबित किया है या ये पढ़ा है कि जब आपके पास जीरो बाइसिंग कंडीशन होती है तब आपके पास जो नेट करंट होता है वो फ्लो नहीं करता और उसकी वजह से आपके पास जो है ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। आइए फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड की ऑपरेशन को देखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से वोल्टेज और करंट के रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसके इस हिस्से को। तो आइए फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि व्हेन अ डायोड इज कनेक्टेड टू द फॉरवर्ड बायस कंडीशन अ नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एन टाइप एंड द पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पी टाइप। इफ दिस एक्सटर्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन द value of potential barrier approximately 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium, then the potential barrier opposition will overcome and the current will start to flow. तो इसके अंदर वाज़ह तौर पे लिखा है कि जब आपने इतना वोल्टेज जब फाहम करना है और फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर तो आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा एंड दिस इज बिकॉज द नेगेटिव वोल्टेज पुशेस repels the electron towards the junction, giving them the energy to cross over and combine with the holes bigger pushed into the opposite direction towards the junction by positive voltage, and this result is in a characteristics curve of zero current flowing up this voltage point called the knee or the static curve, and then the high current flowing through the diode with little increase in the external voltage as shown in the figure here. As you can see here कि जैसे जैसे आपके पास जो है as you can see this is the basically the linearly increasing voltage increasing current और ये forward current है और ये 0.7 के बाद स्टार्ट हो जाता है linearly increase करना। इसे हम एक 0.7 वाले हिस्से के जो मिनिमम करंट होता है इसको हम नी करंट और इसको वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है। So the application of the forward bias voltage of the junction diode results in the depletion region become very thin and the narrow, which represents the low impedance path. So that is why the resistance becomes smaller and the overall जो है वो forward region जो है वो increase कर जाता है। The point at which this sudden increase in the current takes place is represented on the static IV characteristic curve as you can see in this figure. So this diode is from manufactured by the silicon material. तो silicon के लिए जो है आपके पास 0.7 volt require होंगे. If this is for the case of germanium तो ये जर्मेनियम के लिए रिक्वायर होगा और जर्मेनियम से ही ये करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट कि आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। इफ़ यू फॉर एग्जांपल फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम तो फिर जर्मेनियम के लिए ये जो है बाइसिंग कंडीशन कुछ यूँ होनी थी और वोल्टेज रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा। जबकि जो अगर आपके पास सिलिकॉन है तो स्टार्ट फ्रॉम दी 0.7 है। तो दिस इज द न्यू वोल्टेजेस और इसके ये जो करंट्स हैं ये इस तरह से डील करते हैं। Similarly, the second important thing is that
कि क्या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से जो करंट है वो 0.7 वोल्टेज के बाद जो है वो इंक्रीज करता है ड्रास्टिकली, एंड द रीजन इज दैट दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द लो रेजिस्टेंस पाथ, इट इज बेसिकली ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द डिप्लेशन रीजन एंड द लोअरिंग इन द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन। सो जैसे ही आपके पास जो है पीएन जंक्शन अलाउ वेरी लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू द डायोड with only a small increase in the bias voltage, the actual potential difference across the junction of the diode is kept constant by action of the depletion region, and which is approximately zero point 0.7, zero point 0.3 for the germanium and zero point 0.7 for the silicon junction die. Since the diode can conduct infinite current above this new voltage and it is effectively become the short circuit, तो उस वजह से रजिस्टर जो है वो हम ऐड करते हैं ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें, नहीं तो अदरवाइज आपका जो डायोड है वो उसका जो वो ब्रेक कर जाएगा और बर्न आउट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके नतीजे के अंदर यू विल गेट द इन्फिनिट करंट एक्सीडिंग इट्स मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट specification calls the device to dissipate more power in the form of heat than it was designed for the resulting in a very quick failure of the device। तो इस वजह से जो है हम इसके साथ जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ताकि ये डिवाइस जो है इसको ख़राब ना होने से बचाया जाए। तो सिमिलरली जो तीसरा पार्ट है वो है रिवर्स बायसिंग का। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने जब किसी डायोड को रिवर्स बायस करना है तो आपने पी टाइप के साथ जो है एन नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करना होता है। So when a diode is connected in a reverse bias condition, a positive voltage is applied to the N-type material and the negative voltage is applied to the P-type material. The positive voltage applied to the N-type material attracts the electron towards the positive electron and the away from the junction, while the holes in the p-type material ends are also attracted away from the junction towards the negative electrode. So the net result is that the depletion region grows wider due to the lack of electrons in the holes and presents a high impedance path, almost an insulator, and the high potential barrier is created, जिसके नतीजे के अंदर होता है कि आपका जो करंट है वो फर्दर फ्लो नहीं कर पाता और बहुत थोड़ा करंट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। So that is the case when you have a reverse biasing, then the depletion region becomes wider, जिसके नतीजे के अंदर आपका जो डायोड है इट बिहेव स्टार्ट बिहेविंग एज अ ओपन सर्किट। इसके अंदर हम एक बात ऐड करते जाएं कि जो यहाँ पे हमारी स्किप हो गई थी कि जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इट इज बेसिकली बिहेव एज अ क्लोज सर्किट और यू कैन से अ क्लोज स्विच। तो अगर देखें तो दिस इज दी पिक्चराइजेशन ऑफ द डायोड कि डायोड को हम एज अ स्विच के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और उसके मुताबिक अगर फॉरवर्ड वाइज होगा तो स्विच क्लोज है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो डायोड है वो करंट कंडक्ट करेगा, जबकि अगर आप रिवर्स वाइज करते हैं तो स्विच है जो वो ओपन है, जिसके नतीजे के अंदर ये बात क्लियर है कि आपका जो डायोड है ये क्या कर रहा है, ये करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा। However, कंडक्ट इस सूरत हाल के अंदर तो ये आइडियल कंडीशन है जिसमें कंडक्शन करंट जो है वो ज़ीरो है। However, वैसे माइनॉरिटी कैरियर जो है वो थोड़े बहुत कंडक्शन में आते हैं जिसके नतीजे के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत रिवर्स करंट मिल जाता है। एंड दिस कंडीशन रिप्रेजेंट्स अ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द पीएन जंक्शन एंड द प्रैक्टिकली जीरो करंट flows through the junction diode when in the current increases. However, a very small reverse current जो है जिसे हम रिवर्स लीकेज करंट भी कहते हैं डज फ्लो थ्रू द जंक्शन एंड व्हिच इज नॉर्मली बी मेजर्ड इन द माइक्रो एम्पेयर। सो ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो फॉरवर्ड करंट होता है वो मिली एम्पेयर्स में मेजर होता है, जबकि आपके पास जो रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर मेजर किया जाता है। वन ऑफ द फाइनल पॉइंट, if the reverse bias voltages applied to the diode or increased to the sufficiently high voltages, it will cause the PN junction diode to overheat and fail due to the avalanche effect around the junction। और इसके नतीजे के अंदर भी आपको जो डायोड है वो क्रैक कर सकते हैं या फिर उनका बैरियर जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। This may cause the diode to become shortened and it will be result in the flow of maximum current and it is called you can say tunneling of the current also। इसको हम tunneling effect भी कहते हैं या फिर जनरली हम इसको आमतौर पे ब्रेकिंग ब्रेकिंग वोल्टेज भी कहा जाता है, ब्रेक डाउन रीजन भी कहा जाता है इसका, जिसके अंदर आके आपके पास जो है
सडन इंक्रीज हो जाता है रिवर्स करंट, और इसको हम इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो आइए आप इसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक से ये बात समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो नेगेटिव साइड में बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो करंट है वो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। बट एट पर्टिकुलर पॉइंट, एक खास पॉइंट के बाद ये जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज करता है, और इसकी जो शार्प इंक्रीज है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड, यू कैन से द ब्रेक डाउन रीजन। तो अगर देखा जाए तो हम इस करंट के इस कर्व के दो हिस्से कर रहे हैं। एक वो हिस्सा है जिसके अंदर करंट जो है वो मिनिमम ही रहता है, वो है रिवर्स बायस रीजन, और इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है यू कैन से कि आपके पास ये वो करंट होगा जो लो वोल्टेजेस के साथ रहते हैं। इसको नी वोल्टेज भी या नी करंट भी कह देते हैं अक्सर तौर पे। बट एक नी वोल्टेज के बाद एक खास पॉइंट आता है जिसके बाद आपका जो है एवलांच इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो समटाइम दिस एवलांच इफेक्ट जो सडन इंक्रीज है इसको हम एवलांच इफेक्ट कहते हैं, हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वोल्टेज stabilizing circuits where a series of limiting resistance is used with the diode to limit the reverse background current to preset maximum value, thereby producing fixed voltage as output across the diode। तो इसके अंदर एक हॉबी ये है कि तकरीबन आपका जो वोल्टेज है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और आपका जो करंट है वो शार्पली इंक्रीज करता है। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस जहाँ पे आपने वोल्टेजेस को फिक्स करना होता है, हम उसे आमतौर पे कह देते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह के डायोड्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि रिवर्स बायस में भी काम आते हैं। इस तरह के जो खास डायोड्स हैं जो कि वोल्टेजेस वगैरह को कंट्रोल करने में काम आते हैं, दे आर कॉल्ड दी ज़ीनर डायोड्स। और ज़ीनर डायोड का काम भी यही है कि वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पे काम करते हैं। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को वी कह दिया है। वी स्टैंड फॉर द ज़ीनर वोल्टेजेस, और ये जो है रिवर्स वोल्टेजेस के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। सो ज़ीनर डायोड्स और उसकी टाइप्स, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इन दोनों हिस्सों को इकट्ठे मिलाने की कोशिश करें जो अभी हमने पढ़े हैं, सो यू कैन सी हियर कि दिस वोल्टेजेस जो है आर गिविंग यू द a complete curve, and it is called the IV characteristics of the diode, and the first one is the called the forward bias region because of that कि इनके अंदर जो है आपके पास ये हिस्सा भी पॉजिटिव है और ये हिस्सा भी पॉजिटिव है। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन। तो इसको हम फॉरवर्ड बायस रीजन कहते हैं। इट इज कॉल्ड दी एफबीआर है। एंड जबकि जो ये हिस्सा नेगेटिव है एंड दिस इज आल्सो द नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस रीजन। इसको हम आरबीआर आमतौर पे कहा जाता है। और एफबीआर और आरबीआर के अंदर अगर आप देखें तो फॉर द केस ऑफ एफबीआर तो 0.3 वोल्टेज जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्टेज सिलिकॉन के बाद करंट जो है इंक्रीज करता है, एंड दिस इज द न्यू वोल्टेज फॉर दिस वन। और ये फॉरवर्ड करंट के अंदर जो है आपके पास जो है करंट इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड करंट जो होता है वो मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, याद रखिएगा। और ये मेजोरिटी कैरियर्स हैं जिसकी वजह से ये करंट जो है इंक्रीज करता है या फ्लो करता है। तो दिस इज द मेजॉरिटी कैरियर्स जो कि करंट को फ्लो कराते हैं, और दे आर टिपिकली इन द मिली एम्पेयर रेंजेस। जबकि जो रिवर्स बायस करंट है, रिवर्स बायस करंट जो है एक्चुअली दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, और ये जो है आपके पास लो वैल्यूज होता है, स्टेबल करंट होता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो है, जिसे हम रिवर्स बैकग्राउंड वोल्टेज भी कहते हैं, उसके बाद ये करंट शार्पली इंक्रीज करता है। इट इज कॉल्ड द एवलांच इफेक्ट। और इसके ऊपर जो है तकरीबन इसके जो वोल्टेजेस हैं वो सेम रहते हैं, और इसे हम एवलांच इफेक्ट भी कहते हैं। कुछ लोग इसे लीनियर ब्रेकडाउन रीजन भी कहते हैं, और कुछ लोग जो है इसे ब्रेकडाउन रीजन भी कहते हैं। तो जनरली ये सारे नाम लिए जाते हैं। तो ये इसकी टिपिकल रेंज जो है लीकेज करंट की वो आमतौर पर माइक्रो एम्पेयर के अंदर होती है, और उस हवाले से इसको मेजर किया जाता है। सिलिकॉन के लिए जो है वो 20 माइक्रोएम्पेयर है, और जबकि जर्मेनियम जो है 50 मिली माइक्रोएम्पेयर के फॉर्म में जनरेट किया जाता है। तो उस हवाले से जो लीकेज करंट है वो जर्मेनियम का ज़्यादा बन जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि जर्मेनियम के अंदर जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी, या यू कैन से कि जो बैरियर पोटेंशियल वो थोड़ा है, इसलिए वो इजीली मूव कर देते हैं माइनॉरिटी कैरियर। सो
तो ये सारी जो है आज की डिस्कशन है हमारी डायोड की ऑपरेशन के हवाले से और उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से। तो इसका मकसद ये था कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आपका डायोड जो है वो किस किस तरीके से काम कर सकता है और उसका जो करंट और वोल्टेज का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से हो सकता है। और उसको हमने एक पहले से मौजूद रिस्पॉन्स जिसको ओम लॉ कहते हैं उसके मुताबिक कंपेयर करने की कोशिश की है, ताकि हम उसको फर्दर देख सकें कि वो किस तरह से बिहेव करता है। तो ओवरऑल समरी के हवाले से देखा जाए तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फॉर द होम टेक होम मैसेज जो हमारे लिए है वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स कंटेन्स टू टाइप ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, होल एंड इलेक्ट्रॉन. The holes are positively charged while the electrons are negatively charged. A semiconductor may be doped with the donor impurity such as antimony, or you can say n-type doping. Also you can say contain mobile charges which are primarily electrons. So a semiconductor may be doped with the acceptor doping and such as boron, p-type doping, and so that it contains the mobile charges which are mainly holes. So the junction region itself has no charge carrier and is known as depletion region. So the junction depletion region has a physical thickness that varies with the applied voltage. When the diode is zero biased, no external source is applied, and the natural, you can say, the barrier is developed across the depletion region, which is approximately zero point 0.5, 0.3 to zero point 0.7 volts for silicon. Actually, that is, you can say the zero point 0.5 to zero point 0.7 volt for silicon and approximately zero point 0.7 volt for the germanium. When the junction diode is forward biased, the thickness of the depletion region reduces and the diode acts like a short circuit, allowing the full current to flow. When the junction is reverse biased, the thickness of the depletion region increases and the diode acts like an open circuit, blocking any current flowing through it. Only a very small leakage current will flow. तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डायोड के ऊपर बात करेंगे कि डायोड जो है वो किस कौन कौन सी एप्लीकेशन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल डायोड को। फिर हम उसकी फर्दर टाइप्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।